All of you. Today we will be starting now a very important concept in macroeconomics, and that is balance of payment. A full independent question will be there from balance of payment. So today is one class, one question, right? What is balance of payment? Why balance of payment? And what are the components of balance of payment? Balance of payments. First, we will understand the basic ingredients of balance of payment, and once after understanding that, practical dimension of balance of payment, like effectively what is India's balance of payment, what are the positions, relative position, and all those things we will understand. So, first of all, balance of payment. Now, every country has got transaction. Transactions are at two different levels. One is within the country, transaction takes place, and another is one country's transaction with rest of the world. So if country is there, then country has got with so many other countries transactions. All these are called as rest of world. Whether it is inward transaction or outward transaction, whether you are taking in or you are sending out, that is what countries transactions are there. Why that transaction takes place may have a number of reasons. First reason could be one doesn't have it, you have to buy it from outside. For example, India doesn't have that much of petroleum which India consumes, so India has to buy the petroleum from outside, gas from outside. We buy it from outside. We don't have that much. That's when you buy it from outside, purchasing from outside, that is called as import. Import we do. Which we don't have, we import. Certainly which we will have, we will export. We will sell it to outsiders. This have or have not are one of the criteria to decide whether we will be importing or we will be exporting. But there are other reasons also. We have but don't have sufficient. That also can be considered as we don't have. Third reason could be we have the things but we want to use what others are using, some other variety. That could be possible. For best example, we also know how to make chocolate, but we want to have Swiss chocolate. So we take it from Switzerland. That chocolates are available. We know how to make perfumes. We have a very big indigenous perfume industry, but still we prefer imported perfume. We take it. We have a very good car makings in India. Good number of car ranges available which is made in India, but still we take imported cars because we prefer that. We like to have that. So it is not only that you don't have, then only you buy. Even if you have, you buy others. It is not very, only it is essential, that's why you are buying. It could be choice also. Perfume is not a life-saving element, but still we buy from outside. Okay? So this is what something you look for, you ask for any concept, and ultimately you will feel that there is a requirement, there is a purchasing. Am I clear? That's the way it has to be viewed. Now a question arises here. Reason could be whatever that you might study in a subject called international trade or international finance. Why we import, why we export. There is a trade theories, whether it is a absolute advantage theory, relative advantage theory, Hexer all-in model, life cycle theory, imitation gap theory, intra-industry theory, so many theories are there, which basically decides about how the trade takes place. Our concern is not why you are trading,
Our concern is if you are trading, how you are recording. Our purpose is basically to record with how recording takes place. So how recording is going to take place? Understand here very carefully. Look, so import is basically purchase. It's a purchasing, and export is sales. The only term we are differentiating because my counterparty is sitting some other country. Yes or not? Not in the same country. Citizenship of counterparty is not important. Important is location. If an American is sitting in India and I am selling in India only, it is not export. Or when I go somewhere else and there I buy, it is not import. Right? Actually, the transaction has to cross the boundary. What is important is transaction has to cross the boundary. That is there. Now, how fast, how best it could be applied? How quickly we can do this? Let's understand. Every balance of payment is like a statement. Every recording is going to be there. And this also has got revenue records and capital records. Revenue records means revenue item recordings will be there. Capital records means capital item recordings will be there. Both items recording is going to take place. So, it is based on double entry system. What is system? Which system? Double entry system. What is the double entry system? It will have debit and credit. Same debit and credit component is going to get applied here. So, one will be debit item, another will be credit item. Clear? So, how debit and credit is going to get considered, how you will be counting, that's what important point here. Look upon. So, import, export, import, purchasing. Purchasing is a debit item or credit item? Credit item purchasing. So why you are saying credit then? It is a debit item. And what about sales? Credit item. So is here. When you make your statement, export will be your credit item, import will be your debit item. Export will be your credit item and import will be your debit item. Right? Every transaction has to be entered. And this, when you consider in balance of payment, the first account of the balance of payment is called current account. What the term we are going to use? Current account. As the name suggests, current account is what it is actually a revenue account. All the revenue items has to be counted. It has to be considered. So in current account, two main accounts are there. One is called trade account, or it is also called as merchandise accounts. And B number is invisible accounts. Invisible accounts, or it is also called as service account. Service account. So, balance of payment has got first one main account is current account, which has got two important parts, trade account and invisible account. Right? Similarly, the B portion B portion will be called capital account. So A, now you can consider balance of payment is of two accounts. A is current account, B is capital account. Current account has got two parts, trade account and invisible account.
trade account and invisible account. Whereas capital account is actually capital inflow and capital outflow. Capital inflow and capital outflow. Inflows and outflows will be there. Now, in the current account, trade account is there. Trade account basically, it is here export and import of any item which is tangible in nature. Tangible means which has got physical existence. Any of the tangible item, export and import will be counted here. And we know export has to be credited and import has to be debited. Every export item, whatever export you want to make, you are exporting mango, you are exporting perfume, you are exporting, basmati rice, or you are exporting, vehicle, any export is ultimately credit to your own account. Similarly, you are importing anything you import, it is your debit item, credit and debit item. Import is purchase, export is sales, right? That's the way you are going to view. Now, but of what? Of tangible items. Physical existence had to be there, which will be sealed, which will be tapped, which will be sold, which you can view. Name is visible items. Merchandise items. What could be the other one? Other one is going to be, whenever we consider an invisible item, any services which is not visible. That is a consultancy. Or maybe interest, rent, interest payment is there, rental payment is there, any service fee or service charges is there. Okay, all service charges will be there, that will be taken care of. Okay, it will not be requiring more. Every service item, including software. Software is something like what program, just develop the code and you can send across anywhere without looking into, without packing into. It could be there. Hardware export will be where? If I have to export CD, trade. Software export will be invisible. We all know software, it doesn't require, just through mail also you can send across. Okay, that's the way it has been used. So now a question arises that you understand. So here your interest, rent, say insurance, any service of that nature, software, insurance, anything will be counted. That will be considered as invisible. This all will have the two aspects. These all will have two aspects. What are those two aspects? Either you will be receiving rent, earning out of it. So receiving rent means as good as export. So when you receive, it is credit. Yes or not? I am receiving insurance. I am selling insurance to the rest of the world. So I am earning out of it. I am selling, I have invested, my interest income is coming. That's what? It is credit item. So credit will be what? This will be either credit or debit. Credit means received. Debit means paid. That's the way it has to be. So I hope concept is getting clear. Right or not? So we are now very clear
That balance of payment has got two main accounts, current account and capital account. Two main accounts are there. Current account is there and capital account is there. Current account has got two parts, trade account and invisible accounts. Trade account and invisible accounts. What is trade account? Trade account is tangible assets account, merchandise accounts. Export and import of that merchandise is going to take place. Whereas what is invisible account? Service accounts. Intangible account is going to be there. That is service accounts. Is it fine? That's the way it is working. Now, so everywhere debit and credit item is going to be there. Capital account is capital inflow and capital outflow. Capital inflow could be coming because of any reason. Maybe because of someone is interested to invest in India, that's why capital inflow will be there. Like foreign direct investment, FDI is coming. FII, foreign institutional investment is coming. FPI, foreign portfolio investment is coming. So various inflows are coming. और borrowings by India, उसमें भी तो पैसा आएगा. Borrowings will also be there. So whether you take on their willingness or you ask and you borrow, in either case money is coming to you. And when money is coming to you, inflow is there, it is credit item. It is credit item because money is coming to you. चाहे आप मांग के ले रहे हो, बोरो करके ले रहे हो, या वो अपनी मर्जी से आपके यहाँ के इन्वेस्ट कर रहे हैं, that direct investment is taking place. It will be credit. When you invest outside, when you go and park your fund away, that is called debit item. Clear? It should be debit item. That is working on that side. So this is the basic frame of balance of payment. Balance of payment actually works like this. Up to here, any question? Just those who join late, I am repeating in 2 minutes of time what exactly it has taken place, how it has moved. We are discussing balance of payment, which is a book or which is a record maintained by a country. So balance of payment is always for a country. For all those transactions which takes place between that country and rest of the world. So that country and rest of the world transaction takes place. It may be inward transaction called import, maybe outward transaction called export. Mostly open economy environment is there, so always inward and outward both will keep on happening. A country will import, country will export. Why import, export? That's a different subject matter. Here we consider when import and export is there, ultimately it has to get recorded. Practically import may be taken place by, import or export can be taken place by an individual, by a family, by a corporate or by country. All will be recorded. It is getting recorded the moment you transact with the rest of the world. And that record book is called balance of payment. Why the word payment is using? Payment because ultimately payment has to be made to outsider. So we are more concerned with that, how much payment we have to make. Now why it is called balance, which we will discuss little late, but ultimately it is taking place. Then we discuss balance of payment has got two main accounts. What are those two main accounts from this side? What are two main accounts? Current account and capital account. Very good. Current account and capital account, two accounts are there. Current account has got two sub accounts. Trade account and invisible account or service accounts. Right? Clear? Trade account is what? It is actually the accounts of tangible imports and exports.
टैंजिबल मीन्स जिसको टच कर सकते हैं, फिजिकल होगा, फिजिकल फॉर्म होगा। एंड इनविजिबल अकाउंट में क्या होगा? इंटैंजिबल होगा। इंटैंजिबल अकाउंट्स, सर्विस अकाउंट कुड बी देयर, सर्विसेज विल बी द पार्ट। फाइन। इसमें एक और कंपोनेंट होता है यहां पे इनविजिबल में। अर्लियर दैट यूज्ड टू बी सी नंबर, but now for last 2 decades it is included here, and that is there is a part called transfer payment. Have you heard the word transfer payments? Do you understand transfer payments? What is that? Yes, one sided payment. What exactly it mean? Charity, gift, donation. Yes or not? Actually, payment is always done for some service, some product, right? A payment is a consideration, but when you are not making it because of consideration, then it is one-sided only. आप किसी को डोनेट कर रहे हो, डोनेशन दो तरह के होते हैं, एक प्रॉपर गिफ्ट होता है ना? इंडिया डोनेट्स, इंडिया गिफ्ट्स, इंडिया इज वेरी गुड इन टू गिफ्टिंग सो मेनी एग्रो आउटपुट। मैंगो, मैंगो हमारा है, बाइडेन साहब को मैंगो खिलाएंगे, है ना? भेज दिया और अच्छा खासा भेजते हैं, व्हाइट हाउस चला गया, राइट? देयर इज अनदर कंडीशन व्हेन समवन इज इन नीड, मे बी बिकॉज ऑफ नेचुरल डिस्टर्बेंसेस, अर्थक्वेक आ गया, कहीं कोई डिस्टर्बेंस हो गया। अब क्या होता है मालूम हुआ, आप वहाँ से यहाँ से फूड मटेरियल, ड्राई फूड्स, आप कंबल, मेडिसिन, सारे आइटम आप भेजते हो। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा टर्की में हुआ था, वी वर फर्स्ट टू रीच फॉर हेल्प। इट इज अ कॉस्ट टू आवर कंट्री, बट वी डिड इट एज ए चैरिटी। देयर वाज नो गेन फ्रॉम देयर। सो व्हाट इट इंडिकेट्स, दिस इज व्हाट ट्रांसफर पेमेंट। आपने खर्च तो बाहर किया ना, श्रीलंका में प्रॉब्लम था, हमने उनको काफ़ी हेल्प किया। इससे पहले नेपाल का प्रॉब्लम था, नेपाल को हेल्प किया, नेपाल के प्रॉब्लम को स्टेबलाइज किया, श्रीलंका के प्रॉब्लम को स्टेबलाइज किया। लोग पूछते हैं पाकिस्तान को क्यों नहीं हेल्प कर रहे हो? बियॉन्ड द क्लास टॉक, ओके? बट एनीवे, दीज ऑल आर ट्रांसफर पेमेंट्स, इट इज गोइंग ऑन लाइक दैट, राइट? सो दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड। फॉर अस इट इज somebody helps us, it is again credit item, we received it. Not only that, we have in the first phase we have sent millions of vaccine, COVID vaccine, free of cost to them. It was a cost to us, it was a cost to us, but we handed over to our neighboring countries, and it was called as vaccine Maitri, vaccine friendship. Okay, so these are the way through which country creates relationship. और जैसे ऐसे होता है, अब आप सोचोगे इकोनॉमिक एंगल से कि कोई कंट्री किसी को क्यों देगा, इट्स एज ए फ्रेंडशिप, और फ्रेंडशिप नहीं रहने के बाद भी एज ए कर्टसी। अब एवरीबडी नोज इंडिया एंड टर्की नेवर एवर ए गुड फ्रेंड, rather always Turkey has behaved like an enemy, and still India has cared it. Yes. अभी वो सेकेंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, इंडियाज बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ऑल्सो देयर, ओके? दैट इज वी विल डिस्कस इफ इट इज रिक्वायर्ड। और ज़्यादा लोन नहीं है हमारे पास, ऐसा कुछ नहीं है। वी आर मच बेटर देन सो मेनी अदर कंट्रीज एंड वी आर इन अ वेरी गुड कंडीशंस। थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग, हमारा लोन जो है वो लोन लेके खाना खाने का नहीं है, हमारा लोन से इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो रहा है, विच इज़ अ कैपेसिटी। अगर मैं आज एक ही सपोर्ट आपको समझाता हूँ, अगर सपोज करो मैं 1 करोड़ का फ्लैट खरीद लूँ, 80 लाख की फाइनेंसिंग करा लूँ, तो 80 लाख तो मेरे ऊपर लोन हो गया। मैंने फ्लैट खरीदा 1 करोड़ का, राइट? तो मेरे अकाउंट को देखोगे तो लगेगा कि यार तो आप तो 80 लाख के लोन में फंसे हुए हो। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं 15 साल 20 साल का लोन लिया हूँ, आराम से चुका दूंगा, लेकिन मेरा एसेट क्रिएट हुआ है। लेकिन कोई अगर 2 लाख का ही लोन लिया है और खा पी के उड़ा दिया और पैसा देने को नहीं है, वो ज़्यादा परेशानी में है।
So don't get that is what management you have to understand. Loan is not a dirty word. Loan is a really good word. It is called lever. We call it financial leverage. It helps you to do the bigger exercise. अब 10 रुपये का लोन लेके अगर 20 रुपये का काम करते हो, बहुत अच्छी बात है. मैं चाहूँगा 100 रुपये का लेके 200 रुपये का काम करो. तो लोन को देखने का नज़रिया बदल डालो. मीडिया की तरह और इंडियन टेलीविजन की तरफ मत देखो और राहुल गांधी की तरफ मत देखो. सॉरी, रिकॉर्डिंग हो रहा है. ओके, लोन इज अ वेरी वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर एनी इकोनॉमी. ये जितनी रोड पे कार दौड़ रही है ना, अगर कार फाइनेंसिंग बंद हो जाए तो इसका 10% कार रोड पे ना रहेगा. जितने बिल्डिंग के बिल्डिंग कॉलोनी बस्ती चली जा रही है, हाउसिंग फाइनेंस नहीं होगा, घर खरीदना मुश्किल हो जाएगा डियर. ठीक है, तब आप कहोगे कि कोई बात नहीं है, कच्चा मकान में रह लेंगे. ये जो बिल्डिंग देख रहे हो, ये किसके भरोसे चल रहा है? हाउसिंग फाइनेंस. नथिंग रॉन्ग इन टू इट. वी हैव टू यूज इट इफेक्टिवली. So never ever carry this. You all are finance student. Never carry loan. Loan is a lever. What is leverage? आपका ढक्कन खुल नहीं रहा है, आप एक कॉइन लगा के, एक की लगा के खोल देते हो, आराम से खोल देते हो, अपने हाथ को परेशान नहीं करते हो. That is a better. That is a leveraging. That's a loan. Play a role. Clear? That's a setup. अगर जापान फंडिंग नहीं करती, आप मेट्रो एंजॉय नहीं कर पाते हैं. मेट्रो तक पहुंचने की ताकत अभी भी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में नहीं है. लेकिन ये मेट्रो आप पिछले 2 डिकेड से ड्राइव कर रहे हो और आराम से एंजॉय कर रहे हो. कंफर्टेबल लाइफ है ना मेट्रो के कारण. बस वर्सेस मेट्रो यू कैन. एंड मेट्रो नहीं होता, इतने सारे रोड पे होते तो क्या हाल होती. थिंक इन दैट वे. सो इट इज वेरी गुड. सो एनीवे, लेट्स कम बैक टू द पॉइंट. You can create it a bigger one. India is a very good condition country. India is a really very very fundamentally a strong country. Very strong country. Had got huge capital resources in India. India को कमी नहीं है. It's a better management is really required. India is a resource rich country. Very very rich country. और ऐसे ही मजाक में कहते हैं, जिसके पास है वहीं से तो घोटाला भी होता है ना, चोरी भी होती है. जिसके पास है ही नहीं, उसके यहाँ चोरी क्या होगा. जब श्रीलंका का प्रॉब्लम हुआ था तो मैंने कहा श्रीलंका का प्रॉब्लम तो आराम से ऐसे ही क्लास में, उस समय मैं ऐसे CBS में क्लास लेता था, मैं क्लास में इतना ही बताया कि ये बहुत आसानी से. बोला कैसे होगा प्रॉब्लम. बोला कुछ नहीं, इंडिया हेल्प कर देगा, 2 मिनट में हेल्प कर देगा इंडिया. बोला इंडिया में 80 करोड़ जनता को बिठा के खिला रहे थे. श्रीलंका की टोटल पॉपुलेशन 2 करोड़ के आसपास है. हमारा दिल्ली का पॉपुलेशन 2.5 करोड़ है. एक छोटा सा हमारे लिए छोटा एक और स्टेट है, जब चाहेंगे उसको बेल आउट कर लेंगे. और इंडिया ने कर भी लिया बेल आउट. जितना श्रीलंका का प्रॉब्लम था, आपने प्रॉब्लम देखा था श्रीलंका का, इन प्रेसिडेंट हाउस तक पे लोग जाके और पूरा सब कुछ अटैक किए. अब प्रॉब्लम धीरे धीरे ठीक है, जो बेसिक प्रॉब्लम फंडामेंटल है उसको सुधारने में टाइम लगता है, बट वो कहानी सारी ख़त्म हो गई. एक बार पहला खेप 500 करोड़ का दिया, 100 मिलियन का दिया, उनके रोड ट्रांसपोर्ट को, उनके फ्री बसेस फ्री सब कर दिया. आराम से देखिए इंडिया टेक ओवर कर लिया, संभाल लिया. नेपाल का प्रॉब्लम था, पेट्रोलियम सप्लाई कर दिया. वी हैव अ ह्यूज कैपेसिटी. आइडेंटिफाई दैट. ओनली वन थिंग इंडिया हैज़ गॉट मिसिंग इज गुड मैनेजमेंट, good implementation and production of resources. That we have to learn how best we can produce. So come back to this point. What is that? How it is going to work? It is current account, capital account. Current account में all revenue items. Capital account, all capital items. Trade account, merchandise, export and import. Export and import में क्या होता है? Export, import, 2 things are there. When we say we are selling, we have already discussed why we are selling. अब आपकी एक तीसरे पॉइंट पे आते हैं. Balance of payment, by name it is balance. So it should be balanced. Means debit should equal to credit. That's what the balance sheet philosophy. Is it clear? Some total has to be equal. So one by one, step by step, we will take whether it is going to be equal or not. Right? How to look into it? Now, say in trade account. Normally in balance of payment, we don't make double entry like your journal entry. That is on the back book.
balance of payment is like a final statement. So it will always talk about, so here your credit is there and debit is there, but ultimately it talks about net value. Net will be main considered. What is net? Net is actually credit minus debit. Credit minus debit, if it is positive, it is called surplus. If credit minus debit is negative, it is called deficit. If credit minus debit is surplus, means positive, then it is surplus, and if it is negative, then it is deficit. If you are exporting more than you are importing, it will be what? Surplus. ज़्यादा इनकम आएगा, वाइस वर्सा उल्टा हो जाएगा. अगर आप इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हो और एक्सपोर्ट अगर कम कर रहे हो तो आपका डेफिसिट होगा. टाइम बीइंग यू कंसीडर दैट वेदर यू एक्सपोर्ट और इंपोर्ट और एनीथिंग, it will be always in foreign currency. Here currency will also come into picture. In which currency? Foreign currency. What do you mean by here foreign currency? Other than Indian rupee. It takes place in foreign currency. Now, whenever it takes place in foreign currency, so if you export more, foreign currency will come to you more. If you import more, foreign currency will go from you more. That's it is going to be there. So understand, trade account, if export is less than import, what will happen? Will it be deficit or surplus? If export is less than import, will it be deficit or surplus? Deficit. So since this export and import is of trade, so we call it trade account deficit. क्या वर्ड यूज करेंगे? ट्रेड अकाउंट डेफिसिट. सो ट्रेड अकाउंट डेफिसिट इज नथिंग बट इंपोर्ट इज मोर देन एक्सपोर्ट. अगर ट्रेड अकाउंट सरप्लस कह रहे हैं तो एक्सपोर्ट इज मोर देन इंपोर्ट. इंडिया का क्या पोजीशन है? ट्रेड डेफिसिट है, ट्रेड सरप्लस है? ट्रेड डेफिसिट है. तो फर्स्ट थिंग इज दैट इंडियाज position is trade deficit position. Means India is importing more than exporting what India exports. तो इसका मतलब रिसोर्स होते हुए भी ह्यूमन रिसोर्स भी इंडिया में भरा पड़ा है. ह्यूमन रिसोर्स की कमी नहीं है. नेचुरल रिसोर्सेस इंडिया में भरा पड़ा है ना. फिर भी हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं. This is the first concern, first question mark in macroeconomics. है ना. मैटर ऑफ कंसर्न तो यही उठता है. एक तो थ्योरी हो गया, हमें समझ लिए कि यहाँ बैलेंस ऑफ पेमेंट में है क्या क्या आइटम, बट नाउ द कंसर्न इज गोइंग टू बी देयर. अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट. व्हाट अबाउट इनविजिबल अकाउंट? दिस इज ऑल्सो इन अ सर्विस सेक्टर. सर्विस सेक्टर देयर विल बी क्रेडिट एंड डेबिट. If you provide service to the rest of the world, Indians start exporting to services to outsider. Indian doctors, Indian lawyers, Indian professionals, they will give service to others and earn from there, or remittances from there, income remittances. Indian में आप चले गए बाहर, ज्वाइन कर लिया बाहर, वहाँ से अर्न किया थोड़ा. बेशक आप अपने पेरेंट्स को भेजोगे, अपने फैमिली मेम्बर्स को भेजोगे, लेकिन वो यहाँ आके इनविजिबल में काउंट हो जाएगा. वो बैंक के थ्रू टर्न हो मूव करेगा, राइट. तो वो काउंट होगा. तो इनफ्लो हो गया. तो व्हेन इंडियन गो आउटसाइड अर्न, दैट बेसिकली मेक्स योर क्रेडिट आइटम. इनफ्लो इज देयर. एंड व्हेन फॉरेनर्स आर अर्निंग फ्रॉम यू, और यू आर पेइंग फॉरेनर्स जस्ट बिकॉज यू आर टेकिंग सर्विस फ्रॉम फॉरेनर्स, देन इन दैट केस इट इज आउटफ्लो. तो इनविजिबल अकाउंट में क्या होता है? इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज. फिर उसी तरीके से क्रेडिट इज मोर देन डेबिट, इट इज सरप्लस. डेबिट इज मोर देन क्रेडिट, इट इज डेफिसिट. प्लीज रिपीट इट. डोंट हेजिटेट इनटू रीसाउंडिंग. दैट विल गिव यू कॉन्फिडेंस एंड इट विल गिव यू रिमेंबरेंस एज वेल. तो साथ साथ बोलना भी सीखिए. तो ट्रेड अकाउंट में डेफिसिट और सरप्लस दो तरीके हो गए, ट्रेड डेफिसिट या ट्रेड सरप्लस. इनविजिबल में भी इनविजिबल सरप्लस, इनविजिबल डेफिसिट बनेगा इसी तरीके से.
इनविजिबल सरप्लस होगा, इनविजिबल डेफिसिट होगा। इंडिया का पोजीशन ट्रेड में ट्रेड डेफिसिट है। इंडिया का पोजीशन इनविजिबल में क्या है? इनविजिबल सरप्लस है। सर्विस में हम लोग बहुत आगे हैं। वी आर अर्निंग मोर इन इनविजिबल देन वी आर पेइंग टू अदर्स। हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर से लेके हाई प्रोफेशनल्स, दे ऑल आर रियली अर्निंग अ लॉट and they are making, even not only that, our film industry also contributes a lot. हमारी फिल्म्स बाहर भी बहुत चलते हैं और वहाँ से पैसा काफ़ी आता है। हमारे सॉन्ग्स जो हैं, म्यूजिक्स जो है, वो बाहर बहुत पसंद किया जाता है और उससे भी काफ़ी अर्निंग होती है। हमारा स्पोर्ट्स से, हमारे इससे, अभी स्पोर्ट्स में वो लेवल हम नहीं पहुँचे हैं, ओलंपिक की होस्टिंग अभी नहीं पॉसिबल हो पाई है इंडिया में, लेकिन ये सब फील्ड हैं जहाँ से काफ़ी अर्निंग शुरू हो गया। फिल्म में तो कोई डाउट नहीं है, और फिल्म इंडस्ट्री हैज़ रीच टू दैट हाइट वेयर दे आर एट पार और नियरर टू बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। समझ रहे हैं? तो ये चाहे वो टेक्नोलॉजी में कह लो, जैसे भी कह लो, एंड दे आर गुड अर्नर। इनविजिबल दे आर, बट मोस्टली इट इज सर्विस सेक्टर, मोस्टली इट इज दैट योर सॉफ्टवेयर में हमारा पूरा वर्ल्ड में नाम है। वी आर ए गुड अर्नर। बल्कि जितने वर्ल्ड में भी दूसरे तीसरे सॉफ्टवेयर पॉकेट्स बने हैं, सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर पॉकेट जो वर्ल्ड का है वो है सिलिकॉन वैली, कैलिफोर्निया। जो सिलिकॉन वैली का जो सॉफ्टवेयर पार्ट है, दैट इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट वन एंड कंट्रोल्ड बाय इंडियन। मोस्टली इंडियंस आर देयर. So this indicates, and they repatriate, they remit their payment to India. So it is going to work. Now my concern is, if invisible is surplus, trade is deficit, what will be overall condition? This plus this will make current account surplus or current account deficit. So what will happen? If your trade account is in deficit and your invisible account is in surplus, so your current account will be surplus or deficit. That नेट कैलकुलेट करेंगे। वेरी गुड, नेट कैलकुलेट कीजिएगा, और नेट कैलकुलेशन में मतलब ये डेफिसिट है, ये सरप्लस है, तो सरप्लस अगर डेफिसिट से छोटा होगा तो नेट क्या हो जाएगा? डेफिसिट हो जाएगा। और उस डेफिसिट को क्या कहेंगे? करंट अकाउंट डेफिसिट, कैड। क्या कहलाएगा? करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट इज बेसिकली club 2, and if it is then total of current account credit is less than debit, then in that case it is deficit. Clear? और कैपिटल अकाउंट पे आते हैं। अभी पोजीशन क्या है इंडिया का? करंट अकाउंट सरप्लस है या डेफिसिट है? क्या है कंडीशन इंडिया का? करंट अकाउंट डेफिसिट है या करंट अकाउंट सरप्लस है? अभी डेफिसिट रन कर रहा है। करंट अकाउंट इज इन डेफिसिट। ओके, अब थोड़ा सा हिस्टोरिकली बता देते हैं, देन वी विल कम टू कैपिटल अकाउंट। व्हाट इज द रियल स्टोरी ऑफ इंडिया? कॉन्सेप्ट वाइज, टर्म वाइज करंट अकाउंट क्लियर है? करंट अकाउंट का दो टर्म था, मेन दो पार्ट है। कौन कौन से पार्ट हैं? ट्रेड एंड इनविजिबल अकाउंट। इनविजिबल में सारे इंक्लूडिंग ट्रांसफर पेमेंट काउंट हो जाते हैं। कोई ऐसा आइटम नहीं है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, सर्विस हो, कुछ भी हो, किसी भी तरीके से, चाहे रेमिटेंसेस हो, जो इसमें नहीं आता है। सारे आ गए, सारा सब कुछ कवर हो गया। जो नहीं कवर हुआ है, जो कैपिटल अकाउंट की तरह आ रहा है, वो नीचे कवर होगा। इसका मतलब पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन कवर हो जाता है। अच्छा चलो कैपिटल अकाउंट भी पहले एक्सप्लेन कर देते हैं, देन आई विल गो ऑन अ रियल फिगर। कैपिटल अकाउंट में क्या होता है? कैपिटल अकाउंट की जब बात करते हैं तो ये अब अकाउंट एक्सपोर्ट इंपोर्ट का नहीं है, ये अकाउंट पेमेंट का है, बोरोइंग लेंडिंग का है, इन्वेस्टमेंट का है। आप जानते हो कई कंट्री से बाहर से आके यहाँ लोग इन्वेस्ट करते हैं। व्हेन यू हियर दैट एप्पल हैज़ डिसाइडेड टू इन्वेस्ट
LG हैज़ डिसाइडेड टू इन्वेस्ट. जब वो इन्वेस्ट करने आते हैं तो दे कम विद मनी. That money is there, direct investment for longer period. Maybe investing not necessarily always come to invest establishing their own company, rather sometimes they participate in their existing company here. किसी भी फॉरेन कंपनी वाले या फॉरेन इन्वेस्टर्स यहाँ किसी कंपनी में अपना पैसा लगाते हैं, that investment can come. So any kind of investment, or if you borrow from outside, जैसे मैंने बताया जापान ने आपके मेट्रो में इन्वेस्ट किया, वो कैपिटल इनफ्लो है, वो आपके यहाँ इन्वेस्ट कर दिया. बहुत सी कंपनी आके इन्वेस्ट करती है, या आप बाहर जाके इन्वेस्ट करते हो. आपका मतलब क्या हो गया? वही फिर अब मैं तो इन्वेस्ट करने नहीं जाता, लेकिन शायद जितनी कंपनियां जाती हैं, चाहे वो TCS हो या अडानी हो, अंबानी हो, या कोई भी कंपनी जाके इन्वेस्ट कर रहा है, एक्चुअली आउटसाइड इंडिया इन्वेस्ट माना जाता है. इट इज़ इंडिया इन्वेस्टमेंट बिकॉज इंडियन कंपनी गोइंग देयर. सो दैट्स द वे इट इज़ डिसाइडेड. सो कैपिटल इनफ्लो आउटफ्लो. अगर यहाँ क्रेडिट, यहाँ भी वही है, अगर क्रेडिट इज ग्रेटर देन डेबिट इट इज़ कॉल्ड सरप्लस, और अदरवाइज इफ इट इज़ लेस इट इज़ कॉल्ड डेफिसिट, कैपिटल अकाउंट डेफिसिट. राइट, दिस इज ऑल इन फॉरेन करेंसीज. एवरीथिंग इज इन फॉरेन करेंसी. दिस इज मेट. अगर करंट अकाउंट डेफिसिट में हो, कैपिटल अकाउंट सरप्लस हो, तो ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हो जाएगा? सरप्लस होगा, डेफिसिट होगा. फिर नेट कैलकुलेट करेंगे. वेरी गुड. इसका सरप्लस अगर ज़्यादा है तो ये पूरा सरप्लस हो जाएगा, अगर डेफिसिट ज़्यादा है तो पूरा डेफिसिट हो जाएगा. क्लियर? सरप्लस और डेफिसिट इस तरह से कैलकुलेट करेंगे. अब क्वेश्चन उठता है मेरा यहाँ कि क्या अगर सारा ट्रांजैक्शन फॉरेन करेंसी में है एंड टाइम बिंग फॉरेन करेंसी को आप एक करेंसी से सब्सटीट्यूट कर दो, से यूएस डॉलर कर दो. सो दो ही करेंसी है, इंडियन रुपी और यूएस डॉलर, एंड नाउ वी आर कंसीडरिंग एवरी ट्रांजैक्शन इज टेकिंग प्लेस एंड काउंटेड एंड मैनेज्ड इन यूएसडी, यूएस डॉलर में. तो क्वेश्चन उठता है कि अगर करंट अकाउंट डेफिसिट है तो क्या कैपिटल अकाउंट डेफिसिट हो सकता है? मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, एंड आई नीड आंसर आफ्टर गुड थॉट प्रोसेस. If current account is in deficit, can it be possible capital account is also in deficit? Yes or no? हो सकता है. ओके, सो वन आंसर इज हो सकता है. नहीं होगा, फिर लोन हो जाएगा. लोन भी तो कैपिटल अकाउंट में काउंटेड है. हो सकता है, नहीं हो सकता, ये हमें सोचना है. व्हेन करंट अकाउंट इज इन डेफिसिट, कैपिटल अकाउंट इज ऑल्सो इन डेफिसिट. दिस टू इज पॉसिबल और नॉट? ओके, दिस क्वेश्चन वी विल आंसर लिटिल लेट. आप क्वेश्चन को समझे हो या नहीं समझे हो, आंसर बाद में समझा देंगे. क्वेश्चन क्लियर है? पहले इस पे थोड़ा एनालाइज करते हैं. करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब क्या हो गया? करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब क्या है? इंपोर्ट ज़्यादा है देन एक्सपोर्ट. ठीक है, इंपोर्ट ज़्यादा है देन एक्सपोर्ट. इसका मतलब आपका पेमेंट ज़्यादा है देन रिसिप्ट. यस और नॉट? तो फॉरेन करेंसी आप ज़्यादा पे कर रहे हो देन रिसीविंग. ऐसा करते हैं, मैं इसको आपको एक सिचुएशन भी बताता हूँ. सपोज करो एक्सपोर्ट आपका 1000 का है, सारे यूएसडी में अब काउंट कर रहा हूँ मैं, फॉरेन करेंसी में फ़िलहाल काउंट कर रहा हूँ. और जो आप इंपोर्ट कर रहे हो वो 2500 है. तो आपका डेफिसिट कितना हो गया? 1500 का नेगेटिव. प्लीज लिसन वेरी केयरफुली, स्पेशली दोज हु हैव ज्वाइंड लेट. 1500 इज नेगेटिव.
Let's your invisible credit is 1000 and debit is 700. So how much is the invisible account? 300 surplus. Yes or not? Credit is more. Credit is more than debit. Invisible account surplus. It is 300 surplus. So what is the current account position? 1500 negative, 300 surplus. So it is a deficit of 1200. Any doubt here? Let's capital inflow. Total capital inflow is say 5000. Total capital inflow is 5000 and capital outflow is of 4500. So how much is surplus? 500 is surplus. See, I had asked you question of current capital account deficit. Understand कि क्या current account deficit हो तो capital account भी deficit हो सकता है नहीं हो सकता है. मेरा क्वेश्चन यही था ना. अगर यहाँ डेफिसिट है इसका मतलब अभी आपको कंसर्न है कि 1200 कहाँ से पे करें. ध्यान दीजिएगा. एंड इट इज USD, यू कैन प्रिंट. इसे प्रिंट करके पे कर देंगे. क्लियर. अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं, नेगेटिव कर दूं, तो पहले तो ये संभव ही नहीं हो सकता कि आपके पास जब पैसा ही नहीं तो आप इन्वेस्ट कैसे बाहर कर दोगे. चाहे आप अंबानी हो या TCS हो या इंडिविजुअल हो या सरकार हो, है तो नहीं ना, क्योंकि ये तो टोटल काउंटिंग हो रहा है कंट्री का. और कंट्री का काउंटिंग हो रहा है तो सबका काउंटिंग हो रहा है, आपका अकेला काउंटिंग नहीं है. क्लियर और नॉट. ये संभव ही नहीं है. इसका मतलब हुआ कि करंट अकाउंट अगर डेफिसिट में है तो कैपिटल अकाउंट डेफिसिट नहीं हो सकता. कैपिटल अकाउंट डेफिसिट का मतलब होता है आप ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो बाहर देन अदर्स आर इन्वेस्टिंग इन यू. अंडरस्टैंड द मीनिंग. कैपिटल अकाउंट डेफिसिट का मतलब हुआ आप इन्वेस्ट ज्यादा कर रहे हो कंपेयर टू अदर्स जो इन्वेस्ट करेंगे. तो ये पॉसिबल नहीं है. तो चलो इसका मतलब सरप्लस होगा. कुछ हम बोरो करेंगे, जैसे कहें ना बाहर से बोरो कर लेंगे. जिससे बोरो करना है बोरो कर लो, सारा काउंट हो गया और इट इज गोइंग टू बी 5000. ये टोटल 5000 है. कोई दूसरा रास्ता नहीं है. अल्टीमेटली कितना सरप्लस बना आपका? 500. आपका डेफिसिट कितना है? 1200. तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का पोजीशन क्या हो गया? बैलेंस ऑफ पेमेंट इज इन डेफिसिट और सरप्लस? डेफिसिट. कितने से? 700 का डेफिसिट है. कहां से लाओगे? दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नाउ फ्रॉम वेयर यू विल पे दिस 700? बोरो कर लिया ना, जो बोरो करोगे कैपिटल अकाउंट में आ गया. सोचना शुरू करो. आपने जितना बोरोइंग कैपेसिटी थी, जितना मांग सकते थे, जिससे ले सकते थे, ले लिया. आप इससे आगे पे नहीं कर सकते, मतलब क्योंकि बोरोइंग भी काउंट हो गया. वन बाय वन. यस, क्या बोल रहे हो? तो गोल्ड सेल करोगे तो गोल्ड सेलिंग. ओके, चलो गोल्ड सेलिंग की बात करते हैं. अभी इसका मतलब ये है कि एक पहला पॉइंट ये हुआ, यहां पे आप ध्यान दीजिएगा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट बाय डिफिनीशन इट शुड बी बैलेंस्ड, बट इट इज नॉट बैलेंस्ड राइट नाउ. सो देयर इज अ थर्ड अकाउंट, C account. A was current account, B was capital account, C is called official reserves. क्या अकाउंट का नाम है? तीसरा अकाउंट का नाम है ऑफिशियल रिजर्व्स. देयर इज अ रिजर्व अकाउंट ऑल्सो, एंड दिस रिजर्व अकाउंट इट इज कॉल्ड एज, इट इज ऑल्सो नोन एज मॉनेटरी मूवमेंट अकाउंट्स. क्या नाम होता है इसका? मॉनेटरी मूवमेंट अकाउंट्स. सो मॉनेटरी मूवमेंट अकाउंट्स, ऑफिशियल रिजर्व्स अकाउंट्स, विच एक्चुअली यू बैलेंस, यू कीप इट. अगर आपका सरप्लस हो गया हो, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ध्यान दीजिएगा, अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस है तो सरप्लस में जो ज़्यादा अमाउंट होता है
वो क्या करते हो, माइनस कर देते हैं। याद रखिएगा, जब सरप्लस होता है तो नेगेटिव लिखा जाता है। थोड़ा सा एक क्वेश्चन भी ब्रेन में कि भाई सरप्लस में नेगेटिव क्यों लिख रहे हो, तो अकाउंट बैलेंस होता है, नेगेटिव सरप्लस में करेंगे, जितने अमाउंट से सरप्लस हुआ है उतना नेगेटिव करके वहाँ से हटा के रिजर्व में डाल दोगे, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा और वो रिजर्व में जमा हो जाएगा। और अगर किसी कारणवश अगर डेफिसिट हो गया बैलेंस ऑफ पेमेंट के लेवल पे, तो उस रिजर्व से निकाल के तब पॉजिटिव करोगे, वहाँ से निकाल के इसमें डालोगे, ऐड करोगे तो होगा। और वो जो अलग करके रखते हैं, इसी को आप बार बार सुनते होगे, देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड फॉरेक्स रिजर्व्स। न्यूज में आता होगा कि इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व बढ़ के इतना हो गया। अब बढ़ रहा है, इसका मतलब इंडिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट तो सरप्लस में है, ये तो क्लियर है। और बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में है तो वो बढ़ रहा है। कितना है फॉरेक्स रिजर्व, ये आपका एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंटरनल एग्जाम के लिए। अभी बता सकते हो आप लोग कितना है सरप्लस? चलो गूगल में सर्च कर लो फॉरेक्स रिजर्व ऑफ इंडिया। How much it is? Quickly. It will be in $billion. Figure will be somewhere around 620 और 650 के आसपास। चेक करो, ऑफिशियल रिजर्व या फॉरेक्स रिजर्व करना, फॉरेक्स रिजर्व ऑफ इंडिया कितना? अरे 0.77 कैसे होगा, हमारा जो ऑफिशियल रिजर्व है बहुत बड़ा अमाउंट है भाई, 28 बिलियन। पढ़ो पूरा, 578। अच्छा तुम बोले मुझे लगा 0.78। अच्छा 578, इसका मतलब हमने कुछ पेमेंट किया है, 650 तक चला गया था पेमेंट व्हेन वी मेक, देन आफ्टर दैट ये मार्च एंड हुआ ना, some payment has been made which is actually reducing your reserve. Anyway, we have got a very good reserve. That is a separate question again, how much reserve is sufficient reserve or good reserve. ये तो good से better reserve है, better reserve is there, but that reserve has reduced. It was few times back it was 650 plus reserves, $650 billion reserve. Very good reserve was there with India. Now compared to China, we are nowhere. China had kept somewhere around $3 trillion reserve. उनका 3 ट्रिलियन मीन्स 3000 बिलियन डॉलर का रिजर्व था। 4 ट्रिलियन था, 4 ट्रिलियन से 1 ट्रिलियन जब उनकी दिक्कतें शुरू हुई, सम प्रॉब्लम स्टार्टेड इन 2008-9, उसके बाद उन्होंने 1 ट्रिलियन डॉलर धीरे धीरे अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगाया। अभी भी उनका करीब 3 ट्रिलियन के आसपास का रिजर्व बना हुआ है, लेकिन इंडिया के पास भी सफिशिएंट रिजर्व है। अब देखो ध्यान दो यहाँ पे, तो ये थर्ड अकाउंट दैट इज ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट इज देयर। व्हाट वी टेक, वी हैव टू टेक इट फ्रॉम हियर टू मेंटेन इट। क्लियर? नाउ वन सिंपल क्वेश्चन टू यू, very important point I am going to highlight before understanding of the overall impact. यहाँ बैलेंस ऑफ पेमेंट तो बैलेंस हो जाएगा, दैट्स वाई थर्ड अकाउंट इज कंसीडर्ड टू बी ए बैलेंसिंग कंडीशंस और बैलेंसिंग पार्ट। बट सपोज द सिचुएशन इज देयर दैट योर ऑफिशियल रिजर्व इज नॉट वेरी गुड, ऑफिशियल रिजर्व इज लेस। लेट्स से यू हैव योर ऑफिशियल रिजर्व ओनली $300, नॉट मोर देन दैट। आपका डेफिसिट कितना है? 700 का, और ऑफिशियल रिजर्व में आपके पास कितना? 300। तो अब क्या कंडीशन है? 400 तो अभी भी शॉर्टफॉल कर रहा है। क्या करूं? एसेट्स राइट ऑफ। कैसे करूं राइट ऑफ, बताइए? किसको करूंगा एसेट राइट ऑफ? बाहर की कंट्री को, मतलब दिवालिया घोषित करेंगे। आप खुल के ये बोलना चाहती हैं? हाँ, सेलिंग ऑफ एसेट टू आउटसाइडर। तो आप सेलिंग ऑफ एसेट आउटसाइडर समझती हो? फिल्म में जैसे दिखाता है ना कि अब मैं तो रोड पे हूँ, ये नीलामी हो रहा है, घर जा रहा है, सारा एसेट जा रहा है, यही तो होगा ना। थिंक ऑफ कैसा
किस तरह से सेल करोगे, किस एसेट को सेल करोगे। देखो कंट्री के अंदर सेल करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, मिस्टर ए के पास है या मिस बी के पास है कोई फर्क नहीं पड़ता कंट्री के अंदर, जब तक कि वो किसी कंट्री के बाहर वाले के हाथ में नहीं जाता। और कंट्री के बाहर जाने का मतलब क्या होता है, आप कंट्री को बेच रहे हो, एक्चुअली तो यही पोजीशन होगा ना। तो क्या होगा, कैसे होगा? प्राइवेट सेक्टर आपके अपने घर का या बाहर का, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? दैट्स ऑलरेडी काउंटेड। Are you getting the gravity of the problem or not? Concern of the question, yes. एक्सपोर्ट तो आप कर लिए बेटे, आपके एक्सपोर्ट का तो जितनी आपकी ताकत थी एक्सपोर्ट का कर लिए, 1000 लिख दिया मैंने। क्या करेंगे? नहीं मैं समझा नहीं, फिर से बोलिएगा। आरबीआई को क्या आप क्या प्रिंट करोगे, डॉलर या रुपीस, क्या करोगे? प्रॉब्लम कहाँ है? डॉलर में। क्या चाहते हो, पाकिस्तान की तरह रुपीस प्रिंट करना शुरू कर दें? हम भी यहाँ डॉलर प्रिंट करें यूएसए का? नहीं हो सकता ना। यस, फिर से बोल, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है ऐसा? क्यों नहीं किसी कंट्री का दिवालिया पिट सकता है? क्यों पॉसिबल नहीं है? इसके होने पे डाउट क्यों है? प्लीज, instead of gossiping, I'm trying to give you very practical insight, and I'm betting you no economics book will be taking you to that level of balance of payment. वो इतना बता के, डेफिनेशन बता के, एग्जाम्पल दे के आपको चुप कर देंगे, हो गई बात, कहानी खत्म। नाउ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, ये वेरी मच पॉसिबल है और हो सकता है, और हो सकता है नहीं है, हुआ है। एसेट सेल ऑफ करने पड़ेंगे, मतलब तो वो भी तो वही बता रही थी कि एसेट सेल ऑफ करने पड़ेंगे। इसका मतलब है कि आपके इतने बुरे दिन आ गए कि आपको खाने पीने के लिए अपने बर्तन बेचने पड़ रहे हैं, अपने सामान बेचने पड़ रहे हैं, यही कहना चाहते हो ना? तो फिर ये सिचुएशन अच्छी तो नहीं है। वो तो इसमें काउंटेड है डियर, वो 300 में इंक्लूडेड है। रिजर्व में तो गोल्ड हो सकता है, गोल्ड बुलियन हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, फॉरेन करेंसी हो सकता है, एसडीआर हो सकता है, सब मिला के मैंने वैल्यू बोला है। आपके पास जो रिजर्व है वो टोटल काउंटेड है। दिस इज द सिचुएशन विच इंडिया हैज फेस्ड इन 1990। 1990 में इंडिया का यही सिचुएशन था, और इंडिया वॉज ऑन वर्ज ऑफ बैंक्रप्सी, इंडिया वॉज ऑन इकोनॉमिक कोलैप्स, and the title was given called balance of payment crisis. This is called crisis because there was no solution at all. This has already happened in India, and crisis was to that severe. First it started because lot of issues were there. It started during the period when Rajiv Gandhi was prime minister. Somehow he was not able to give it full attention. Anyway, by that time his government went off. After completion of the time, new government appeared headed by Vishwanath Pratap Singh, VP Singh, as the prime minister. He was also not a economic mindset person, was not knowing how to save this sinking ship called Indian economy. He was not at all knowing. He tried to divert the attention by through nonsense means, but he was unable to do anything, and finally within 2 years of time he resigned from his prime ministership. And then after that another Singh, Mr. Chandrasekhar Singh, became the prime minister without knowing what is the problem of Indian economy. And that problem of Indian economy was there continuously, it was going worse because things had been worsening, and you know when I start worsening, you don't require anything, it will go automatically down. It will keep on going down, and it was a big alarm that your Indian economy can't have it.
All those oil exporting countries and everyone has given ultimatum to India, sorry, we will not export you because you have not made our previous payment. Payment is required. And Indian economy was in really worse state, very worst condition. And in that worst condition, ultimately in 4 months of time, Chandrasekhar Singh also resigned. Not possible. And every day media was trying to highlight new problem. And how economy will move was a concern. And then in that worst situation, again election got announced. Because lot of changes was there in the governance. No one was ready to have it. And finally, during that election campaign only, somehow unfortunately, Rajiv Gandhi got assassinated. An entire Indian scenario, political scenario got changed. And a person who was in political ILM had already taken sannyas from active politics, was invited to come as a prime minister who had not even fought the election, and name was P.V. Narasimha Rao. He became the prime minister, but his stalwartship, and during 1978 he was finance minister also. He was knowing that what exactly the problem of India is there. During that 78, not finance minister, but he was a minister and very close, with the finance ministry also. He was understanding that entire life he has spent into the government activities. So he was knowing how to handle it. So he was very much aware of the Indian economy is of that condition where no politician can handle. And that he invited Manmohan Singh, who again was not a person into active politics, invited him to come and take charge of finance ministry. So understand, prime minister who have not fought the election, finance minister who have not fought the election, and being a very good economist, earlier governor of RBI, India's representative to IMF, and very much knowing the condition of Indian economy and balance of payment condition. He simply refused, I can't become the finance minister. Said, why? He said that the kind of condition is there, any decision I'll take, even forget about opposition, even Congress will not be happy. These politicians will not be happy. Then Narasimha Rao said, don't worry, that I'll take care. And that's the new beginning started. Prior to that, when Chandrasekhar Singh was the prime minister, at that point of time, even Rajiv Gandhi was supporting him from outside for the government. At that point of time, on the instruction of IMF, we had to place the asset selling which he was mentioning, we had to hand over our gold to somebody else, like mortgaging. We mortgaged our gold and physically gold lifted from India to Bank of Japan. कितनी बड़ी शर्मनाक बात थी कि अपना गोल्ड हमें गिरवी रखने के लिए फिजिकल उठा कर ट्रांसफ़र करना पड़ा। बोला कि इंडिया पे फेथ नहीं है, दिखाने से काम नहीं चलेगा। और वो इंडिया फेस कर चुका था। और 1991 की बात बता रहा हूँ। एंड फ्रॉम देयर व्हेन इट वाज मेड, entire story of economic development got rewritten, and we moved on the path of LPG, liberalization, privatization, globalization, and we call 1991 is the rebirth of Indian economy. एक नई शुरुआत हुई और वहाँ से जो जर्नी स्टार्ट हुआ 91 से, तो अब लगता है कि हमने जो पुराना पास किया, पुराना जो टाइम फ्रेम था 91 से पहले का, जिसमें रॉन्ग पॉलिसी के कारण इंडिया बहुत पीछे रह गया। जिस 70s तक हम चाइना से आगे थे, वो चाइना आज हमसे 4 गुना से ज़्यादा आगे, 4 times बिगर इकोनॉमी, जबकि 70s तक इंडिया वॉज अहेड ऑफ दैट। 60s तक जापान हमसे पीछे था। वी वर द वन ऑफ द हाइएस्ट एंड बेस्ट इकोनॉमी इवन आफ्टर लॉट ऑफ दैट स्लेवरी पीरियड। लेकिन उस इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस वी डिडंट मूव इन अ राइट डायरेक्शन, और अब मूव कर रहे हैं तो अब वो स्ट्रेंथ को हाजिर कर रहे हैं। आप लोग तो 1991 को विजुअलाइज नहीं कर पाएंगे, बिकॉज वॉट एवर आई एम शेयरिंग विद यू दैट विल बी द स्टोरी
but I have witnessed that. I have seen those things through newspaper. You can witness the exact same replica is for last 6 months going to Pakistan. Pakistan is exactly suffering on the same point. And I can understand the problem of Pakistan, because 30 years back, 32 years back, we had suffered like that. We had seen same way. And unfortunately with the Pakistan is that even IMF was not ready to help, because Pakistan is actually in a grey list because of terroristic activity. So those limitations are there with the Pakistan. They are not ready to, declare that yes, they will not stop terrorizing the terroristic funding and those activities, and that is becoming hurdle. And for them, unfortunately, India is right now head of that, task force which is actually deciding the funding to the rest of the world related to this. Financial Action Task Force is there, and that task force is right now for 1 year, rotation wise heads are made. India is the head, and you can understand India is the head and Pakistan is needing. So what kind of relationship is right now going? And that's why those who are there, everybody says that Modi se dosti kar lo to shayad ye sudhar jayega, problem khatm ho jayega, because it is a very, and Pakistan's economy has got problem because of their own blunders, the way Indian economy had got, but their blunders are more in a different way compared to ours one. Not a part of our subject discussion, that's why I'm stopping it, Pakistan talk right now. Okay, let's come back to the point here. Now we got it, what the changes took place at that point of time, what Manmohan Singh did, apart from liberalization, privatization and globalization. He made one point very clear. Since he was representative to IMF, for 2.5 years he was Indian representative to IMF. So he was knowing what way function of IMF is there. Not only because of representative, I also know how IMF functions because being a teacher, being an economics professor, but he was knowing the people also there. So finally said, our rating had gone down. India को negative rate में, negative zone में डाल दिया गया. We had got 176th rank in the 183 country list. कुछ ही 2-4 कंट्री बचे थे हमारे पीछे, अदरवाइज हम लोग सबसे पीछे जा चुके थे 176th रैंक पे. और जब इंडिया को उस पर डाला गया, सब ने नेगेटिव रेटिंग कर दी, कहीं से लोन मिल नहीं सकता था. तो इसी को बहुत अच्छे तरीके से देखिए, यहाँ से इकोनॉमिक्स वर्क करता है, जो कभी भी पॉलिटिकल सॉल्यूशन नहीं होता, इकोनॉमिक सॉल्यूशन था. क्या 91 का सबसे बेस्ट पार्ट क्या है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम हैड गॉट इकोनॉमिक सॉल्यूशन. उससे पहले का जितना भी फेल्योर हुआ है, व्हेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम हैड गॉट पॉलिटिकल सॉल्यूशन. Unfortunately, not only to India, most of the country happens that economic problem get addressed by politicians, not by economists. और वहीं ब्लंडर स्टार्ट होता है. तो जब जब इस तरह की बातें होंगी, इसीलिए मैंने कहा, जब ये पूछ रहे थे लोन की बात है, तो लोन एक इकोनॉमिक इशू है, एक इकोनॉमिक कंपोनेंट है, उसको इकोनॉमिस्ट को समझने दो. अगर पॉलिटिशियन और सीनियर स्टार अगर उसको समझाने लगें तो दिक्कत हो जाएगी. मीडिया वाला जो जर्नलिस्ट है, कभी स्पोर्ट्स कैप्चर करता है, कभी रैंप वॉक कैप्चर करता है, और वो चाहेंगे कि वो बैठ के इकोनॉमिक्स को एक्सप्लेन करे, तो हम लोग बेकार हैं जो रात रात भर अपनी आंखें खराब करते हैं. ये आपको समझने की ज़रूरत है. ये इसलिए क्या इंपॉर्टेंट है वो यहाँ समझने की ज़रूरत है. तो क्या 91 का गुड पार्ट क्या रहा? गुड पार्ट ये रहा कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम को इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग एंड इकोनॉमिक सॉल्यूशन मिला. क्या मिला इकोनॉमिक सॉल्यूशन? सॉल्यूशन जो सबसे, एलपीजी तो आप समझ रहे होंगे, स्कूल लाइफ से पढ़ते हुए आए होंगे, और अब तो उतना नहीं तो उस नए जनरेशन में जितने जीडी इंटरव्यू होते थे उसमें तो कॉमन क्वेश्चन था कि पढ़ लो भाई इसको. क्या इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो बोले ठीक है, आई एम ए बेगर,
नाउ इट वाज ए कैटेगरी, बेसिकली बेगर कैटेगरी, बेगर मीन्स भिखमंगा कैटेगरी बना दिया, कंट्री भिखमंगा है, एक्सेप्टेड। आप बोल रहे हो, मैं मान रहा हूं। अब जब भिखमंगा आपने मुझे कह ही दिया है तो मुझे भीख भी दे दो। दैट्स अ फर्स्ट अटैक to IMF, said that there is a concept in IMF called Extended Fund Facility, EFF, which is generally given at the free of interest charge to the country which is no way able to survive. बोला आप हमें इस पे लोन दे दो। अब IMF फंस गया, रेटिंग तो आपने ही की है ना। अब आप नहीं कह सकते हो कि भैया इंडिया तो बड़ी कंट्री है, बड़ी इकोनॉमी है, अब ये सब कहानी खत्म। आपने मुझे रेटिंग और अनाउंस कर दिया है रेटिंग, तो रेटिंग अनाउंस किया, तब उसके अकॉर्डिंगली लोन दे दीजिए एंड गिव इट इमीडिएटली, बिकॉज एवरी मोमेंट इज अ वेरी कॉस्टलियर वन, एवरी डे इज अ लेट। तुरंत लोन आ गया। जैसे ही लोन आया, बोला मेरा ऑफिशियल रिजर्व इतना बड़ा हो गया, अब मुझे कहिए कि मैं अपना गोल्ड वापस लेके आऊं, मेरे पास रिजर्व तो है ना। अब आपने लोन दे दिया तो मेरा पैसा है। सीधा नहले पे दहला कैसे रन किया। लोन जब मिल गया, लोन इमीडिएटली मिल गया, क्योंकि भाई ये तो सैंक्शन ही है, लोन सैंक्शन हुआ, लोन सैंक्शन आया, बोला मेरे पास ये रिजर्व रहा जी, ये तो मेरा है। अब आप बोला हाँ ये तो है आपका, बोले तब गोल्ड हमें वापस करो। मेरा गोल्ड जो वापस लाया, 4 महीने के अंदर गोल्ड वापस। और ये कमाल की बात हो गई, मीडिया को समझ में नहीं आया कि अभी 4 महीने पहले एक प्राइम मिनिस्टर है जो कि गोल्ड बंधक रखवा रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है इंडिया के पास इतना ही गोल्ड है। उसका देश ने कहा कि कुछ नहीं, और इतना ही नहीं कहा, 3 महीने का टाइम दो, मैं तुम्हें गोल्ड दिखाता हूँ। इतना ही गोल्ड नहीं, हमारे पास बहुत गोल्ड है, गोल्ड की कमी नहीं है इंडिया में। और इसने क्या किया, एक स्कीम अनाउंस किया, दैट इज कॉल्ड गोल्ड डिपॉजिट स्कीम, GDS। बोले जिसके पास जितनी ज्वेलरी है आप अननेसेसरली लॉकर में रख के करते हो, हम आपको उस पर इंटरेस्ट देंगे, आप डिपॉजिट करो। और 300 टाइम्स गोल्ड डिपॉजिट हो गया गोल्ड बैंक में, GDS में, और दिखाया IMF में, IMF को कि भैया देखो हमारे पास इतना गोल्ड है, अब बोलो क्या चाहिए। बोला कि ये तो कैसे, अभी तो कुछ दिन पहले ऐसा था। बोला ये इंडिया है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ तो घर घर में जिसको 2 वक्त खाने का नहीं है, उसके पास भी कम से कम 100-200 ग्राम गोल्ड रहता है, हर घर में गोल्ड है। और वो गोल्ड ट्रांसफॉर्म कर दिया। इतना ही नहीं, 100% EOU, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट को 10 ईयर्स टैक्स हॉलीडे दे दिया, 10 साल का टैक्स फ्री। देयर इज नो टैक्सेशन ऑन योर अर्निंग, नो कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स इफ यू आर अर्निंग इन फॉरेन करेंसी। सारी कंपनी लग गई। और हमारे यहाँ तो बहुत खिलाड़ी हैं सब, इधर से उधर अर्निंग करके हमें क्या चाहिए, फॉरेक्स, और वो लाना शुरू कर दिए। अपना भी मनी घुमा दिए बाहर से, मॉरिशस का रूट, सिंगापुर का रूट, सब रूट खोल दिए, और दनादन 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 पूरा का पूरा करेंसी आना शुरू हो गया। आई एम शेयरिंग विद यू इज द स्टोरी ऑफ 1991, एंड बाय 93 इट हैपेंड। इट वॉज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वन। कभी आप लोगों को मौका मिले तो आप लोग RK लक्ष्मण का कार्टून का बुक है, देखिएगा, पूरी इकोनॉमी की जर्नी इसमें एक्सप्लेन्ड है। उनके कार्टून बहुत मैसेज देते हैं, इतने अच्छे कार्टून के थ्रू उन्होंने इकोनॉमिक्स को एक्सप्लेन किया है। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपता था जब तक वो रहे। और एक तरफ 91 में दिखा रहे हैं कि एक इंडियन इकोनॉमी व्हीकल है जो 2/3 पानी के अंदर डूब चुका है, डूब रहा है इस लाइन पे, और मनमोहन सिंह उसको बाहर कैरी करना चाह रहे हैं, खींचना चाह रहे हैं। और 3 साल के बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री दिखा रहा है, वित्त मंत्रालय लिखा हुआ है, अंदर मनमोहन सिंह अपने रूम में अलमीरा बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, एक अलमीरा है और बंद नहीं कर पा रहे हैं, उससे फॉरेक्स बाहर निकल रहा है। 3 साल में जर्नी ट्रैवल हो गया, और वो जर्नी ट्रैवल हुआ, इट वॉज अ $31 बिलियन का डिपॉजिट हुआ हो गया। और वहाँ से जो हमारी जर्नी स्टार्ट हुई है, टुडे इन 2 decades ऑफ टाइम, rather 3 decades now completed, 3 decades of time, India is the only bright spot in the global recessionary environment. This is what IMF statement is there. It has taken. That's the way Indian economy has moved with respect to balance of payment exercise. Never ever available into any one of the book, even not in your SLM, not in any other places, but lot of right information. One more important part is there. 2003-04 में हमारा करेंट अकाउंट सरप्लस हो गया था।
अब ये भी देखिए, ध्यान दीजिएगा, करेंट अकाउंट डेफिसिट एंड करेंट अकाउंट सरप्लस. हाउ करेंट अकाउंट डेफिसिट इज देयर? Current account deficit means your trade and invisible both are there. Deficit, clear? Yeah, invisible का surplus is not sufficient to take care of your trade account. Interestingly, 2003-4 में, that was अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट, ओके, एंड उस समय हमारा करंट अकाउंट सरप्लस पहुंच गया. मतलब इनविजिबल सरप्लस वाज सफिशिएंटली एबल टू टेक केयर ऑफ ट्रेड डेफिसिट. एंड 2020 अक्टूबर, जिस समय हम पेंडेमिक में सफ़र कर रहे थे, कोरोना से ग्रसित थे, 2020 के अक्टूबर में पहली बार अपने इंडिपेंडेंट इंडिया के पूरे बैलेंस ऑफ पेमेंट के हिस्ट्री में पहली बार ट्रेड अकाउंट सरप्लस हुआ. थोड़ी देर के लिए ही रहा, 3 months, बट ट्रेड अकाउंट भी सरप्लस रहा. पहली बार ट्रेड अकाउंट सरप्लस हुआ था 1947 के बाद से लेके. और ये ट्रेड अकाउंट सरप्लस, इट वाज बिकॉज थोड़ा सा हुआ, उसका पीछे एक कारण और भी था ना, हमारी इंडस्ट्री बंद हो गई थी. तो बंद हो गई तो इंपोर्ट बंद हो गया, और हमने एक्सपोर्ट को बंद नहीं किया. बहुत से एक्सपोर्ट जो थे हमने, और ख़ास करके मेडिसिन वगैरह को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया. यू नो दैट वी वर सप्लाइंग द मेडिसिन टू आउटसाइडर्स. इसके बाद फिर जो हम इंपोर्ट करते, वैक्सीन अपना बना लिया. जो गलत तरीके से फंस सकते थे थ्रू इंपोर्ट, अगर नहीं बनाते, अगर पुराना स्टाइल रहता तो हम डिपेंड करते कि अच्छा फाइज़र बनाएगा तो ऑक्सफोर्ड बनाएगा तो ये बनाएगा वो बनाएगा, हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते. एंड देन इट शुड हैड कम. हमने अपना बनाया. जो पीपी किट था, किट हमारे पास फरवरी में एक किट भी नहीं बनता था इंडिया में, नॉट अ सिंगल किट. और मई में 20th मई का रिपोर्ट है, 20th मई 2020, 1 lakh kit per day we were manufacturing, we were preparing. That a transformation capacity invented, and we started exporting also. And ये सारा पूरा का पूरा प्रोसेस था. एक दूसरा सेगमेंट जो डिफेंस का सेगमेंट है, डिफेंस के सेगमेंट में इंडिया हैज़ एक्चुअली टर्न फ्रॉम इम्पोर्ट इंटेंसिव टू एक्सपोर्ट इंटेंसिव. वी हैव बिकम एक्सपोर्टर. जितना हम इंपोर्ट डिफेंस में कर रहे हैं उससे ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं. अभी फ़िलहाल वापस हम ट्रेड डेफिसिट में हैं, वापस करेंट अकाउंट डेफिसिट में हैं, बट मोस्ट ऑफ द आइटम विच वी आर टेकिंग इज रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, रिलेटेड टू ऑल दोज रिजर्व्स. हाउ द बेस्ट डिटेल ऑल दीज आर गोइंग टू मेक इट, आई विल लेट यू नो इन सब्सिक्वेंट सेशन. बट टेल मी इफ यू हैव एनी क्वेश्चन. You got the practical dimension of it? Practically you got the point? Because in one class I'll take you the slide which I was trying to show you the India's balance of payment and journey from 1950s onward, how it has moved, what kind of Indian perspective has been there. That will give you full insight of that India's balance of payment. And one question easily, comfortably, any point of time you can write. Yes. तो चाइना से जो हमारे यहाँ पर इम्पोर्ट होता था, तो उसपे जो उसकी वजह से चाइना हमारे जो सेलर्स थे, जो भी सेलर्स थे, उनको कहीं ना कहीं अफेक्ट हुआ. उनको अफेक्ट, मतलब उनको अफेक्ट हुआ है उससे. उनके प्राइस काफ़ी ज़्यादा डाउन थे, तो उनके प्रोडक्ट ज़्यादा बिकते थे चाइना वालों. तो क्या इसमें, इस केस में जो ये इंपोर्ट हम कर रहे हैं, ये पॉजिटिवली इसको लिया जाना चाहिए, नेगेटिवली? मतलब चाइनीज़ आपको सस्ता दे रहे हैं तो इसलिए आपको पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, यही कहना चाह रहे हो ना? अगर हमारा इंपोर्टेड प्राइस अगर लोअर है देन डोमेस्टिक प्राइस, तो वी शुड प्रीफर टू इम्पोर्ट, राइट? यही क्वेश्चन है ना एक लाइन में, चाइना हो या कहीं का हो. ओके, क्या होना चाहिए? आप लोग क्या चाहते हो? आप लोग जो चाहोगे वही आंसर होगा. डेमोक्रेटिक स्टाइल में आंसर डिसाइड करते हैं. मुझे क्या दिक्कत है, आप बोलो. चाहे वो प्राइस ज़्यादा भी हो, थोड़ा ज़्यादा है तो, थोड़ा ज़्यादा है तो होना चाहिए. अच्छा, क्वालिटी, आप अनदर डायमेंशन डालना चाहते हो क्वालिटी का. अभी तो मैं मान के चल रहा हूँ कि क्वालिटी दोनों बराबर है. अपने देश में एम्प्लॉयमेंट मिलेगी,
वेरी गुड। देखो आंसर आप ही के क्लास से मिल रहा है, अभी मैंने नहीं कुछ बोला है। क्या चाहते हो आप, क्या चाहते हो सो बोलो। आप जो चाहोगे मैं उनको कन्विंस कर लूंगा। इंपोर्ट होते रहना चाहिए। सर इम्पोर्ट होना चाहिए अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है तो अगर टैक्स नहीं आपको एक मिनट एक्सक्यूज मी प्लीज। इंपोर्ट होना चाहिए, प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट कैसे हो रहा है? सर जो हमें टैक्स बेनिफिट्स मिल रहे हैं टैक्स बेनिफिट मतलब? टैक्स बेनिफिट का मतलब? सर जो टैक्स लगता है जो बस अभी थोड़ी देर में, 2 मिनट 5 मिनट 5 मिनट छोड़ रहे हैं। हाँ ठीक है 5 मिनट प्लीज। तो अच्छा ठीक है, मैं मान लिया आपकी बात से सहमत हूं। इंपोर्ट इज चीपर, लेट्स इंपोर्ट, कीप ऑन इंपोर्टिंग। हाउ लॉन्ग? फ्रॉम वेयर योर पेइंग कैपेसिटी विल कम आफ्टरवर्ड। आई विल गिव यू एग्जाम्पल। अफगानिस्तान 80% से ज़्यादा इंपोर्ट पे डिपेंड कर रहा है। इज इट अफगानिस्तान इज इन ए बेटर ऑफ कंडीशन? तो फिर आप इंपोर्ट तो कर रहे हो लेकिन अपनी अर्निंग नहीं हो रही है आपकी, तो कब तक इंपोर्ट का पेमेंट कर पाओगे? कहां से होगा? राइट और सिर्फ रॉ मटेरियल के एक्सपोर्ट से भी काम नहीं चलेगा। एग्जाम्पल वेनेजुएला, ऑयल रिजर्व था, वन ऑफ द बिगेस्ट ऑयल रिजर्व। सबको कह दिया चिंता मत करो जी, अरे हमारे पास बहुत रिजर्व है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन खिलाते रहेंगे। वेनेजुएला ने 1960s में यह डिसीजन लिया। 2008 आते आते उसकी इसी हालत ख़राब हो गई, लोगों ने काम करना ही बंद कर दिया था, सब कुछ फ्री था। और फ्री इतना हो गया कि उसने टूरिज्म बंद कर दिया कि बाहर के लोग आएंगे तो फ्री के खाएंगे, टूरिज्म भी बंद कर दिया। और दशा ये हुई कि आज वेनेजुएला, आप पढ़ लेना, वेनेजुएला बैंकरप्ट इकोनॉमी है। जो ऑयल रिजर्व वन ऑफ द बेस्ट ऑयल रिजर्व है। मुझे डर लगता है कभी कभी केजरीवाल के नीति से। मेरे पास एग्जाम्पल का लाइन लगा हुआ है, लोगों को समझ में इकोनॉमिक्स नहीं आ रहा है। फ्री वर्ड पूरे इकोनॉमिक्स में वर्ड नहीं है फ्री। अगर इकोनॉमिक्स में कोई अगर डिफिनीशन, कोई वर्ड मिसिंग है तो वो फ्री है। किसी न किसी को पे तो करना पड़ेगा। आपके लिए फ्री होगा, कोई ना कोई तो वो पे करेगा, ये मान के चलिए। ये हो ही नहीं सकता है कि कोई रिसोर्स फ्री हो जाए, संभव ही नहीं है, उसकी कीमत होती है। छोटा है, चल जाएगा, बच्चा है, चल जाएगा, डोंट वरी, इट विल नॉट टेक टू मच ऑफ टाइम। एनीवे, थैंक यू, थैंक्स फॉर द class. Those who have not taken the material, please take the material, and we will continue practical aspect of balance of payment in next class.